in mind that not only it is essential and important for you uh, for the examination, because last time we have discussed it that in examination usually or certainly I can say certainly certainly it was asked right from the 2K18 first semester, second semester, 2K19 first semester, second semester, as well as 2K20 special examination second semester. So it is quite obvious that such a type of questions are certainly asked for. So you must prepare for that. Where I was, Chirag, will you locate me? Where I was? Any one of you? Ashish, were you present in my last class? Yes, sir. Uh, can you locate me where we left last class? Because unfortunately, two consecutive incidents occurred. On Wednesday, when a class was there, it was Buddha Purnima. I could not attend or I could not take class, for it was a holiday. And after that, on Saturday, the cyclone was there. Due to that, all of a sudden, we had to drop the class by the order of Honorable Principal Sir. So, after a long gap, I am meeting. Tips for preparing, resuming, and data. But several topics were there. That is why, Prashant, can you say where I left? I think, let me remember and recall that educational qualification I did or personal detail. Personal detail was for that. Okay. Now it is term of work experience. You can note it down. You can note it down. Work experience. While writing, while writing your work experience, you are supposed, you are supposed to mention your jobs, to mention your jobs in reverse, in reverse chronological order, chronological order, chronological, chronological order with the current post, with the current post. Please stop. Then, then state the state the company's name, company's name, position held, position held, and the period, and the period in inverted comma, date of joining and leaving both. Date of joining and leaving both. Ravi, did you understand this matter? आप लोगों ने ये बात समझी या समझाया जाए? No, sir. Again, repeat, please. हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होता है आपके वर्क एक्सपीरियंस का, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है जानना कि क्या आप इससे पहले इस काम का कोई अनुभव रखते हैं। यहाँ तो छोड़िए, किसी प्राइवेट इंटरप्राइजेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दैट इज वाई लोग कैंपस सिलेक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन करने में रुचि रखते हैं। इफ आई डोंट गेट हैंड्स अप सैलरी, मे इट बी, तो डिपेंड करता है नेगोशिएशन पर, बट आई विल हैव द प्राइड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट। मेरा अनुभव इतनी बड़ी कंपनी का होगा और इस कंपनी का या इस इंस्टीट्यूशन का या इस इंटरप्राइजेस का एक माने रखता है।
That is why work experience is very important for explaining. इसलिए जब कभी भी आप वर्क एक्सपीरियंस को लिखें तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि सबसे पहले तो ये बताएं कि राइट नाउ आप क्या कर। मैंने पहले भी कहा था कि एक अक्सर ये हम गलती करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस फास्ट से चलते। नो, एवरीबॉडी इज डिजायरस टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि रनिंग चीज को सब लोग प्रेफरेंस देंगे। जैसे मुझे अगर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का मामला आएगा तो आई विल टेल that right now I am assistant professor as guest in Department of Humanities and English teaching in GEC वैशाली। मैं यहाँ से ही शुरू करूंगा, क्योंकि सबसे पहले कि whether you are in running condition, working condition or have you done something past। 2 साल का भी अगर लीप है आपके अंदर, ब्रेक है आपके अंदर, तो अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि कहीं ये साहब भूल तो नहीं गए पढ़ाया था, इस बीच सिलेबस बदल गया, इनको तो पता नहीं होगा, इस बीच क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया, इन्हें पता नहीं होगा। सेवरल चेंजेस कम्स विच दे थिंक के भाई इनको ये दिक्कतें आ सकती हैं। दैट इज वाई सबसे पहले आप करंट दें, एंड आफ्टर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you also mention your previous experience too, because that is a supporting, not only supporting, very much supporting matter for you, that right from the beginning you have got several experience of several institutions, several companies, several enterprises, several so on। तब फिर बैक में जाएंगे कि अर्लियर आई वाज इन सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचिंग द सेम, बिफोर दैट आई वाज इन MIT मुजफ्फरपुर एट टाउट several batches there from such and such। Earlier I was in Milia Institute of Technology, पूर्णिया। जहां जहां आपने काम किया है मैं अपने ही बारे में बता सकता हूँ। ऐसा होता रहेगा। जॉब चेंज एक ट्रेंड बन गया है। अब कोई एक जॉब में अगर रहते हैं तो दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट है, तो दे चेंज द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर ऑफर। उन्हें बड़ा ऑफर मिलेगा वो चले जाएंगे, फिर बड़ा ऑफर मिलेगा फिर चले जाएंगे, इट गोज ऑन। अब सवाल ये है कि आपने जो पिछला एक्सपीरियंस या आज का एक्सपीरियंस दिया, दोनों में आपको अपनी हैसियत बतानी कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में थे उस इंस्टीट्यूशन में क्या नाम था। तो आई वॉज इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, या आई एम इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली। एग्जैक्टली व्हाट पोजीशन डू यू हेल्ड देयर? आई एम ए फैकल्टी मेंबर। जो है हम लिखेंगे। व्हेन, कब से है, तो फ्रॉम 2K18। ओके, वेरी गुड। राइट नाउ, नो आई हैव नॉट लेफ्ट, टिल डेट आई एम वर्किंग। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप वहां कब ज्वाइन किया था? तो 2K17 में किया था या 2K15 में किया था, जो। एंड व्हेन डिड यू लीव? अगर आपने लीव कर लिया है तो उसको मेंशन करेंगे। अगर नहीं लीव किया है तो आप लिख सकते हैं कि वर्किंग टिल डेट। व्हेन वेयर यू इन MIT मुजफ्फरपुर? व्हाट वाज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग? व्हेन डिड यू ज्वाइन? ऑन 2 जनवरी 2K8। व्हेन डिड यू लीव देयर? ऑन 31 दिसंबर 2K16। एक बात हुई, जो आपका डेट है आप लिखे। Before that, Taiwan in Milia Institute of Technology. When, what was the date of joining? 23 February 2K3, जो भी आपका डेट है। When did you leave? In 2K17. When? On 31st December। जो जो आपने किया है ABCD ऐसे डाल दें, या अंडर ब्रैकेट रोमन अल्फाबेट में डाल दें 1 2 3 4। बट इट शुड बी रिवर्स। पहले GC वैशाली, देयर आफ्टर ऑल दैट। ये कभी नहीं सोचे कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया या किसी बड़ी कंपनी में काम किया, एंड आई डिड दिस 2 years ago।
or 2 years before. And I should mention here, no, it is not the proper way. Right now, इंस्टीट्यूशन छोटा हो बड़ा हो आपकी समझ है, उनका तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि वेदर यू आर वर्किंग एम्प्लॉय, रनिंग एम्प्लॉय, और इन मोशन और इन स्टैटिक, दे आर जस्ट डिजायरस टू नो। उनका सिर्फ इतना सा समझना है आज के डेट में आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कम कर रहे हैं तो आपकी वही एनर्जेटिक होगी, आपकी वही डिसिप्लिन होगी, आपकी सब कुछ वही होगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं 2 साल पहले किया, अच्छी। सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी पहले रिसेंट डिग्री और क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली आई विल राइट डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन humanities, I mean English. First of all, I will show that I am PhD. बिकॉज पीएचडी के बाद अगर वो ईगर होंगे तो जानेंगे, अगर ईगर नहीं होंगे तो उनके लिए काफी है कि मैक्सिमम या मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ ए फैकल्टी इज पोस्ट सॉरी पीएचडी डिग्री। अगर उनकी इच्छा हुई कि इसका कैरियर कैसा रहा तब वो नीचे आएंगे कि एमए फर्स्ट क्लास है, पटना यूनिवर्सिटी से है, ये उनका सेकंड मैटर होगा। लेकिन फर्स्ट तो वो यही देखेंगे वेदर यू क्वालिफाई दैट और नॉट। इफ यू आर एमटेक यू शुड हाईलाइट दैट क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एमटेक, हेंस यू आर एमटेक, इट इज क्वाइट ऑब्वियस यू आर बीटेक। अब उनके पास 20 सेकंड में अगर समय मिला तो उन्होंने आगे देखा, वरना उन्होंने सोचा कि एलिजिबल है इसको कॉल कर लो, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो इंटरव्यू में हम देख लेंगे और बात भी कर लेंगे। वी शुड कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, very important, which is always given in vacancy, references or referees. References or referees. References or referees. You need to list, you need to list, you need to list two referees, two referees, 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 preferably one academic and another should be employment related, should be employment related, should be employment related, full stop. Names of relatives, names of relatives, names of relatives should not be included, should not be included in the list, in the list, full stop. It is advisable, it is advisable, it is advisable to seek permission, to seek permission from the persons, from the persons whose name you intend to include as referees, as referees सर ये लाइन before, रिपीट कर दीजिएगा। okay, okay, whose name you intend to include as referees before you enter their names, enter their names in the resume, in the resume, in the resume. This is a very important topic which should understand well. अंकित इस बात को समझा आपने? Yes sir, 50%. 50%. सोनाली, what is your response? रेफरीज और रेफरेंस को अच्छे से समझा आपने? Please repeat. Not
आई एम आस्किंग के रेफरीज और रेफरेंसेस को आपने समझा हाउ इट शुड बी यूज्ड? नो सर, प्लीज हाँ, इसको रिपीट कर दीजिए। प्लीज प्लीज समझिए। कहता है कि आपको आवश्यकता पड़ेगी हर एप्लीकेशन में, मैंने बीपीएससी में दिया, अभी बीपीएससी की बहाली होने वाली है, आई एम कैंडिडेट देयर, उसमें मुझे 2 रेफरीज और रेफरेंसेस देने पड़े। कहता है कि अच्छा तो ये होगा कि एक आप एकेडमिक रेफरेंसेस दें और एक एडमिनिस्ट्रेटिव या जॉब रिलेटेड। जैसे आप पढ़ रही हैं तो आपको कोई टीचर तो बहुत अच्छे से जानता होगा, बहुत अच्छा होगा कि आपका हेड आपको अच्छे से जानता होगा, या कोई भी नामचीन प्रोफेसर जिनसे आपने पढ़ा है उनका रेफरेंसेस दें। ये आप बताना चाहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू हैव बीन, आप कितने अच्छे विद्यार्थी रहे हैं कि आपको आज भी फलाने कॉलेज, जिस कॉलेज से आपकी डिग्री है, जहां की आप जॉब करना चाहते हैं, खुद करें। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट you must include another references as job related persons like administrative persons। आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं जो जॉब रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी से compete किए हुए बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे बीच होते हैं, आईएएस आईपीएस के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बट सिर्फ एकेडमिक दोनों अगर दे देते हैं तो दैट शोज के यू आर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यू आर हैविंग। बट एडमिनिस्ट्रेटर दे देने से मतलब ये हुआ कि योर कंडक्ट हैज आल्सो बीन गुड। दोनों चीज आपको देना है कि आई एम वेरी मच पॉपुलर एंड हैविंग ए वेरी गुड कैरियर, दैट इज वाई वेरी फेमस प्रोफेसर, very famous teacher of my time of that particular college who is now HOD or principal, अब प्रमोट करके क्या बने देखने की बात है, he is knowing me। और दूसरा, मेरा कंडक्ट और कोड इतना अच्छा रहा है कि मैं इस तरफ से भी लोगों को जानती हूँ, जैसे डीपीओ साहब हो गए, जैसे एसडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का या आईपीएस लाइन का या किसी लाइन का एक अच्छा थे। दैट मीन्स योर कंडक्ट इज ऑल्सो गुड। अब यहाँ पर 2 बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा होगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्चुनेट हैं कि इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। योर रिलेटिव्स आर हैविंग दैट पोस्ट, जैसे मेरा केस है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर है, बट आई कैन नॉट मेंशन, इसलिए नहीं कर सकता हूं कि दैट इज नॉट परमिसेबल। आपके फादर बहुत बड़े टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या कोई अच्छे एकेडमिशियन है, तो उन्हें आप देंगी तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सपोर्ट, कि हम अपनी बेटी के लिए, हम अपने बेटे के लिए तो सपोर्ट करेंगे। तो इम्पार्शियल और अलग टाइप के लोगों को दीजिए हु आर नॉट योर रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड। इवन जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के इन्विजिलेशन में ड्यूटी दिया जाता हूं, आई हैव टू साइन ए डॉक्यूमेंट दैट नो relative of mine is appear in this examination. This declaration I give first. Thereafter, I will be accepted as invigilator in any competitive examinations which are conducted in several engineering colleges. Relative को आप लीगली नहीं ले सकते, दैट इज नॉट प्रॉपर। कि आपके अंकल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के कोई बहुत मशहूर आदमी है, एसपी है, डीएम है, बीडीओ है, सीओ है, डीपीओ है, सो मेनी, तो जज है जुडिशरी में, यू कैन नॉट। इसका तो खास ध्यान रखना ही होगा कि आपके रिलेटिव आपके रेफरी नहीं बनते। एक और छोटी सी बात एडवाइस के तौर पर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब किसी का नाम डालना चाहें तो आप नाम डालने से पहले उस पर्टिकुलर व्यक्ति से जरूर कंसल्ट करें कि सर मैं आपका रेफरेंस में नाम डालना चाहता हूं, ताकि आपके एप्लीकेशन के बाद
जब कभी भी वो उनसे कांटेक्ट करेंगे, whomsoever you are mentioned, so they will not contact you, they will direct ask you, the referee. Do you understand? मेरी बात आपने समझी? Yes, sir. Yes, If I sir. mention honorable principal sir, obviously he will ask कि सर सोनाली का एक एप्लीकेशन आया है, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट शी है थी, उसने आपका रेफरेंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई नो हिम, जो भी होगा, बट दैट कैन बी ओनली डन व्हेन यू हैव ऑलरेडी कंसल्टेड दैम, कि मुझे चिराग से, प्रशांत से, अंकित से, रफी से पहले ये इंडिकेशन मिल गया है कि ही इज एक्सपेक्टिंग कि उसने हमारा रेफरी में नाम दिया, तो ही विल नॉट बी सरप्राइज्ड when any questions are asked related to that. So please keep it in mind कि उस आदमी को आप एक ऐसी परिस्थिति में नहीं डालें जिससे उसको प्रॉब्लम्स हो। In several cases my name was mentioned by some students. किसी ने कहा कि सर मैं रेफरी में आपका नाम दूंगा, माई प्लेजर, माई ऑनर, आईओसी में, एनजीओसी में, दिस में, दैट में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, प्रॉब्लम। एंड समटाइम्स यू विल बी सरप्राइज टू नो, समटाइम्स दे सेंड लेटर इन फॉर्मेट टू आस्क देयर रिटन ओपिनियन अबाउट दैट कैंडिडेट। कभी कभी ये भी होता है कि दे आस्क के भाई हाउ यू नो व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट ही हैज बीन, व्हाट टाइप ऑफ कंडक्ट हिज behavior has been in his academic career or technical career, they ask it. तो उसको जरूर बता दीजिए जिसका भी नाम आप दे रहे हैं, ताकि जब कभी भी आप अप्लाई करें ऑब्वियसली आपका नाम ही सिलेक्ट हो, मैं तो यही दुआ करूंगा। और व्हेन दे आस्क अबाउट यू, द रेफरी मस्ट नो यू पर्सनली, ऐसा ही नाम दिया भी जाता है जिनको आपसे बहुत अच्छा संबंध हो, एंड दे नो यू वेल। रैंडमली मैंने कहीं पढ़ा है और किसी टीचर का नाम दे दिया और बड़े फेमस टीचर है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट नोइंग यू वेल, ही विल फील अ बिट कंफ्यूज्ड। और नौकरी में कोई कंफ्यूजन नहीं चलता, वो भी गलत नहीं है, आप कहीं गलत ये है कि आपको कह देना चाहिए था। केस वाज वेरी सिंपल। अभी मैंने बीपीएससी में जिन जिन लोगों का नाम दिया है, आई हैव कंसल्टेड देम प्रायर। अभी कुछ जगह और भी वैकेंसीज आई थी, वहां भी मैंने गेस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो आई मेंशन देयर नेम कि भाई आई एम मेंशनिंग योर नेम। अच्छा ठीक है, दे दीजिए, आई नो, जब भी कोई बात आएगी आई नो, लिख दूंगा, बोल दूंगा, कोई बात। ऐसा पूछा नहीं जाता, बट ये वो लोग हैं जिन्हें पर भरोसा किया जाएगा आपको इंट्रोड्यूस कर। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात आप समझा कि नहीं? आप Yes, sir. बैंक में इंट्रोड्यूसर बनते हैं, क्यों बनते हैं? कि भाई इनका खाता आप खोल ले, मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं जानता हूं, अगर उनके बीच में कोई भी कंडक्ट बुरा होगा दे विल कंसल्ट यू। लाइकवाइज आप एक जॉब पर जा रहे हैं, दे नो यू, एंड थ्रू दोज पर्संस दे मे यू वेल। वो उनसे जरूर बात करेंगे कि भाई ज्वाइनिंग दे रहे हैं, इससे पहले जरा जान ले हकीकत क्या है, कैसा स्टूडेंट रहा ये, इसका कंडक्ट कैसा रहा, इसका एकेडमिक कैरियर कैसा रहा, बिहेवियर कैसा, सो मेनी थिंग्स। अब थोड़ी बात छोटी मोटी और जान ले। अपीयरेंस ऑफ ए रिज्यूम, अपीयरेंस ऑफ ए रिज्यूम, हाउ ए रिज्यूम शुड लुक, रिज्यूम कैसा नजर आए, सीवी कैसा नजर आए, इसको थोड़ा दो चार लाइन में देख ले। इट इज एडवाइजेबल, it is advisable to use good quality white paper of A4 size,
full stop. It is better to type. It is better to type. It is better to type it on the computer. On the computer and take a printout. And take a printout. Stop. It will be a blunder. It will be a blunder on your part. On your part, if you submit a handwritten resume, because it lacks a professional touch. अंजलि, did you understand this matter? दो चार बातें जो मैंने अंत में खत्म करते वक्त लिखा दी है. Did you get this matter? आशीष, आप बताएंगे, आपने इस बात को समझ लिया? यस सर. ठीक है. छोटे से में ये समझ लीजिए कि बेमन का दरखास्त देना छोड़ दीजिए. एडवर्टीजमेंट शॉर्ट आता है. अब शॉर्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप बेमन से दें. बेमन से का मतलब है आपका जो पेपर होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा, फ्रेश होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए. A4 साइज को हम लोग स्टैंडर्ड साइज मानते हैं. ये नहीं कि ताव वाला कागज लिया और उससे हम शुरू कर दिया. और यू आर लिविंग इन द एज ऑफ कंप्यूटर. आपकी 1000 राइटिंग अच्छी हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये नहीं पढ़ाएगा सर कि पढ़ाएगा. वाई? आप कंप्यूटर का कंप्यूटराइज सिस्टम यूज कीजिए. सेकंड थिंग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंट आउट एंड जीरोक्स. यूजुअली लोग करते क्या है कि जीरोक्स को दे देते हैं. भाई प्रोफेशनल टच है. आज हर चीज में लिफाफा देखा जाता है. यू कैन नॉट से कि हम किसी भी तरह से भेज दें तो मेरा एप्लीकेशन हुआ. नो, दे विल फील कि ये कितना लेथार्जिक आदमी है, इसको प्रिंट आउट देना चाहिए. जीरोक्स अच्छा भी हो सकता, नहीं भी हो सकता. एंड लास्ट वन, आपके लिए ये गलती नहीं है, ब्लंडर होगा कि आपको एप्लीकेशन में रिज्यूम लगाना है और आप बाहर ना निकलने का बहाना करके अपने हाथ से लिख देते हैं. आप लाख हाथ से लिखे, आपको प्रोफेशनल टच से वंचित माना जाएगा, सब नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा. और रिज्यूम तो आपका एक्सेप्ट होगा ही होगा, बट दे विल डिमीन यू, दे विल लुक डाउन यू, दे विल थिंक इट अदरवाइज. की कौन सी बेवकूफी है. सारी दुनिया कंप्यूटराइज भेजती है, प्रिंटेड भेजती है, यहां से क्या लिख के भेजे. ये प्रोफेशनल टच को हर्ट करता है. प्रोफेशनल टच का मतलब है आपका आउटर गेटअप से लेकर आउटर सब कुछ अपडेट होना चाहिए. यू आर लिविंग इन 21st century, especially 21 is going on. अब हाथ से लिखा हुआ नहीं चलेगा. रिज्यूम इज फिनिश्ड. रिज्यूम पर तो मुझे कुछ नहीं कहना. एक टॉपिक और रह गया, दैट इज कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन. इसका फॉर्मेट आप लोगों ने डिमांड किया या एक्सेप्ट. आई नो, आई विल गिव इट टू यू. मेरे पास अपना होगा तो भी ठीक है, नहीं भी होगा तो भी आई विल सेंड इट टू यू. फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट मैंने बता दिया, लेकिन फॉर्मेट में भरने के जो तरीके होते हैं वही आपको अट्रैक्ट करते हैं. दैट विल बी वो लास्ट होगा. मैं PDF ऑफ एंड ऑन भेज ही देता हूँ. व्हेनेवर आई गेट टाइम, मुझे साइट पर कोई ऐसी चीज लगती है विच यू शुड नो, आई सेंड यू. अपना भी कहेंगे तो मैं अपने से भी लिख कर बना कर भेज दूंगा. कवर लेटर.
कुछ टाइम बचा है, 2-4 मिनट बात कर ले। कवर लेटर इज अनदर नेम ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जब हमने रिज्यूम दे दिया तो जॉब एप्लीकेशन क्यों, और व्हेन जॉब एप्लीकेशन है तो रिज्यूम क्यों? नो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आइए कुछ कवर लेटर, जिसे हम जॉब एप्लीकेशन ही कहते हैं, उसके बारे में लिख लें। टॉपिक इज जॉब एप्लीकेशन ऑब्लिक कवर लेटर। Number 1, it introduces the applicant's resume. The applicant's resume. अंजलि, did you understand? सबसे पहले जानिए कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके रेज्यूम का परिचय देता है। इसका मतलब ओनली रेज्यूम भेजना नहीं चाहिए, विथ एप्लीकेशन ही भेजना चाहिए। नंबर 2, it highlights the candidate's personal traits, TRAITS, traits and achievement दूसरी सबसे खास बात इसकी ये है कि जो हम एप्लीकेशन देते हैं उसके ऊपर में स्टेपल करके, जिसे हम जॉब एप्लीकेशन कहें या कवर लेटर कहें, ये उन चीजों को हाईलाइट करता है जो कैंडिडेट का पर्सनल मिजाज है, कैसे वो लिखता है, कैसे वो अपनी बातों को बताता है और अपनी उपलब्धियों को कैसे हाईलाइट करता है। इस बात को समझना होगा कि रिज्यूम एकदम एक रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग कोई नहीं सुनना चाहता है। कभी आपने देखा है कि हाईलाइट लोग क्यों देखते हैं? भाई, दिन भर का मैच है, घंटे का आधा घंटे का हाईलाइट हम क्यों देखते हैं? बिकॉज हाईलाइट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग देन द होल डे क्रिकेट मैच। आपको ध्यान ये देना है कि उसी में से काम की बातें निकाल लिया जाता है एप्लीकेशन के जरिए। लेट अस गो अहेड। थर्ड पॉइंट, रेज्यूम ऑब्लिक CV is usually sent with a covering letter. हर रिज्यूम एक कवरिंग लेटर के साथ भेजा जाता है। आपका कंटेंट्स कुछ भी हो, आपका इन्वेलप होगा ही होगा। आप कार्ड सिर्फ हाथ में नहीं देते हो, कार्ड के को अंदर इनसाइड करके। तो रेज्यूम के ऊपर एक कवरिंग, नाम भी इसका देखिए कवरिंग लेटर है, वो उसको कवरेज देता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसी के बारे में बताता है। विदाउट इट the job application is considered incomplete. Full stop. The main objective of the covering letter is to draw the employee's attention to your job qualification. In fact, I want to know whether you have got time or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं कवरिंग लेटर को समझाना चाह रहा था। Have you got time?
सर 1040 तो हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका हम टॉपिक ही बदल दिया है, आपका रेज्यूम कंप्लीट हो गया है। मैं जॉब एप्लीकेशन तो लिखा ही दूंगा, लेकिन जॉब एप्लीकेशन क्यों जरूरी है, उसमें कौन सी बातें हैं कि हम रेज्यूम में सारी दास्तान देने के बाद भी जॉब एप्लीकेशन देते हैं, उसी के बारे में मैं चाह रहा था कि आई शुड एक्सप्लेन दैट इन डिटेल कि जॉब एप्लीकेशन में हम कौन बातें लिखें, क्यों लिखें और उसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि दैट इज इंट्रोडक्शन। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। रुद्र प्रताप सिंह, डिड यू गेट माय पॉइंट? जॉब एप्लीकेशन आपको समझना ही होगा, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट में इसको फिनिश करता हूँ। यू नीड दैट, क्योंकि आपको समझना होगा कि जॉब एप्लीकेशन ही अट्रैक्ट करेगा रेज्यूम की तरफ। अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो रिज्यूम कोई देखेगा भी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट सर। अरे भाई बहुत फास्ट जमाना है, आप देखते हैं कार्ड का अंदर से खोलते तक नहीं लोग हैं, कवर ही पर लिखा होता है कि कब रिसेप्शन है, कब प्रोग्राम है और कहां पर है, किसका है। लोग टेबल पर रख देते हैं, डेट याद रखते हैं, बिकॉज इट इज एनफ। इसी से हम इतने खुश हो गए कि आपको कॉल कर, रिज्यूम देख लेंगे हम आपका डिटेल में। सो प्लीज गिव मी some time in next time with another topic also, के कवर लेटर को थोड़ा सा बता दें। इज इट ओके? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। Thank you, sir.